A very good evening, everyone. Thank you so much for joining in. Let us start our session with a short meditation. Sit back comfortably. Relax your mind, relax your body, shoulders loose. The burden on your mind and heart getting removed. Take your hands in your lap and close your eyes. Smile a little bit, knowing that this mind is vanishing all my fear and worries. Affirm, my smile has strength. My smile has the power to solve any issues. My happiness is shown on my face. I am a happy soul. Just like a flame in a dark room is enough to banish all the darkness. So is my bright, sharp, and its beautiful flame is removing all the obstacles and negativities. Today, I cherish this gift from the Divine, and with the Divine's support and blessings, I am ready to unfold the magic and enlightenment through our reading. Thank you. Om Shanti. Let me share the screen now. Is my screen visible? हाँ जी, visible. It is visible. Thank you, the system. So, as discussed in yesterday's introductory session conducted by the author themselves, we are going to start with this beautiful short book. This book is short, but the lessons that we are going to learn from this book are profound. I hope you all are excited to start this book and this journey. Let's explore Ishan's divine techniques to end the dark age of career, initiate a new world order, and the rise of another golden age by George Sargent. There is this quote at the starting of this book. From delusion, lead me to the truth. From darkness, lead me to light. From death, lead me to immortality. This quote is from
Brihad Aranyak Upanishad, and the verse is 1.3.28. In Sanskrit, we call it, we recite it as Asto Ma Satgamaya, Tamso Ma Jyotirgamaya, Mrityorma Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. So with this prayer or affirmation, let us start this journey. This book is religion neutral. I just wanted to clear it at the beginning. We should read the preface to get the background of this story. Nirvana is a contemplative tale that weaves together philosophy, science, and spirituality through an extraordinary dialogue between a child named Ishan and God. Ishan is no ordinary child. He is gifted prodigy who has devoured hundreds of books from a young age. Driven by a passion for biology, holistic healing techniques, and the mysteries of life, Ishan feels compassion for all living beings, and he is deeply troubled by the cruelty toward animals as well as the destruction and loss of life caused by wars and natural calamities. तो ये जो बुक है निर्वाणा एक कंटेम्पलेटिव फेल है यानी कि हमें अपने मन में इसको कंटेम्पलेट करना है कंटेम्पलेट मतलब चिंतन करना है जो भी हम इसमें सुनेंगे तो इस बुक को हम इसीलिए धीरे धीरे डीपली ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे कोई हड़बड़ी नहीं है आराम से समझ समझ कर पढ़ेंगे इस बुक में फिलॉसफी साइंस और स्पिरिचुअलिटी इन तीनों चीजों का मिश्रण है जो कि इसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायलॉग बना देता है जैसे कि बुक के कवर में भी हमने देखा है कि एक चाइल्ड की फोटो है तो इस बुक में डायलॉग दिया गया है वो जो चाइल्ड है उसका नाम है ईशान और गौर उन दोनों के बीच का ये डायलॉग है उन दोनों की बातचीत है और जो ईशान है वो कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है वो बहुत ही गिफ्टेड है बहुत गिफ्टेड है उसने यंग एज से ही बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ के रखी है उसके मन में कंपैशन है सारे लिविंग बींग्स के लिए उसके मन में दया है और जब भी वो कोई क्रूएलिटी कोई क्रूरता देखता है वॉर्स की वजह से या फिर एनिमल्स के साथ जो होती है तो उसे काफी बुरा लगता है Despite his vast intellect, Ishan's extraordinary mind is burdened by a physical illness that has plagued him since birth. He suffers from a series of genetic disorders that have left his body frail and weak. Ishan endures constant pain and each day he prays fervently for a cure, longing for the day when he might find relief from his sufferings. One night, Ishan's boundless curiosity, fueled by his longing for healing, leads him into a dream where he encounters God. Born with a rare and debilitating condition, Ishan has spent his life searching for answers, hoping to free himself from the chains of his illness. ईशान का जो इंटेलेक्ट है उसकी बुद्धि वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है क्योंकि वो यंग एज से ही काफी सारी बुक्स पढ़ता है डीपली मूव है एक मेच्योरिटी भी है उसके अंदर में लेकिन बचपन से ही उसे कुछ ऐसी इलनेस है कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो बहुत कमजोर हो गई है और उसे कॉन्स्टेंटली वो पेन हर एक दिन सहना पड़ता है वो प्रे करते रहता है कि उसे एक क्योर मिले उसे एक इलाज मिले और वो उस दिन के लिए वेट करता है कि कब उसे रिलीफ मिलेगी इस सफरिंग से एक बार क्या होता है ना वन नाइट
ईशान की जो इतनी क्यूरियोसिटी रहती है, जो उसकी लॉन्गिंग रहती है कि वो हील हो पाए, इस वजह से ड्रीम में वो गॉड से मिलता है। और ईशान जिसने अपनी पूरी लाइफ में, अभी तक की जितनी लाइफ है उसने, वो काफी सारे आंसर्स खोजने में जुटा दिए। तो अब उसे गॉड से बात करने का, और गॉड उसके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इस बुक के थ्रू। What follows in his dream, in this dream, is the divine revelation that Ishan's suffering has not been without purpose, that he has been chosen not merely to be healed, but to play a divine role in the turning of the age. God initiates him into his destiny as Kali, who will end this Kalyug, the current long and turbulent age of darkness, and begins teaching him the eternal techniques that will form the foundation of a new world order. तो यहाँ पे गॉड, जो यहाँ पे डिवाइन की रिविलेशन होती है ईशान के सामने, ये बताती है कि जो ईशान की इतने टाइम से जो सफरिंग है वो बिना किसी पर्पस के नहीं है। तो इससे हमने ये सीख ले सकते हैं कि हमारी लाइफ में भी जो सफरिंग होती है, हमें चैलेंजेस लगते हैं, उन सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ हमें वो सिखाने के लिए आता है। कमिंग बैक टू ईशान स्टोरी, तो ईशान की स्टोरी में क्या है कि वो बिना पर्पस के, उसकी कोई सफरिंग नहीं है, उसे डिवाइन ने खुद चूज किया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खुद को हील करे, पर वो एक डिवाइन रोल भी प्ले करेगा इस एज की टर्निंग को ले। तो गॉड उसे क्या बुलाते हैं, कल, जो कि इस कलयुग को एंड करके एक नया युग लेकर आएगा। अब अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, तो चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग। तो जो कलयुग होता है ना, उसके लिए आपने भी सुना होगा, ऐसे कई बार कहा जाता है घोर कलयुग आ गया, इतना बुरा हो रहा है, लोग ऐसे हो गए वैसे हो गए। तो कलयुग एकदम एंड में आता है, उसके बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट होता है जो कि काफी ज्यादा प्योर होने वाला है। तो जैसे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कल्कि एक अवतार होते हैं जो कि कलयुग के एंड में आते हैं और फिर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में भी गॉड के लिए यही कहा गया है कि गॉड ने ईशान को कल्कि बोला है, जो कि इस कलयुग को एंड करेगा। कलयुग क्या सिंबलाइज करता है, जो करेंट लॉन्ग एंड टर्ब्यूलेंट एज ऑफ डार्कनेस है। इसे एंड करके, इसे एंड करने के लिए गॉड काफी सारे इटर्नल टेक्निक्स ईशान को सिखाएंगे, ताकि वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फाउंडेशन, एक नींव रख सके। As the dream unfolds, Ishan is taught the governing laws of body luck, the underlying framework by which life situations and events are shaped through lifestyle and bodily well-being. He learns the sacred art of spell healing, a meditative technique capable of restoring the body and mind, thereby healing illnesses that have no cure in modern medicine. God reveals the mysteries of spell transcription, the ability to make groundbreaking scientific discoveries and uncover lost truths through the focused power of the human mind. Ishan is also introduced to the concept of quantum science, subtle omens, and symbolic reflections that reveal the future encoded in the present. Through these teachings, Ishan is transformed not only in body and spirit but in destiny. Armed with this ancient wisdom, he is tasked with restoring balance to the earth, reviving harmony among all living beings, and guiding humanity back into another golden age, an era of absolute peace, radiant health, and joyful coexistence that it once knew and has been lost. तो यहाँ पे जो टेक्निक्स मेंशन की गई हैं इंट्रोडक्शन में, ये सारी टेक्निक्स हम डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो भी क्वेरीज होगी वो सारे हम डाउट्स अपने नोट डाउन करके रखेंगे, और एक स्पेशल सेशन हम अनाउंस करेंगे कुछ कुछ टाइम के इंटरवल के साथ में, ऑथर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और ये सारी टेक्निक्स हमें भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ेंगे
और उसके बाद में जैसे ईशान का इस स्टोरी में है कि कलयुग को एंड करके वो एक गोल्डन एज लेकर के आ सकते हैं। तो ये जब हम सभी करने लगेंगे ना तो हमें अपनी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। So let's get started. This is the chapter one, the dream. Scene. A starry, infinite expanse where Ishan finds himself floating. A warm, glowing presence envelops him, slowly taking on human contours as it shapes into the tall, radiant figure of a man. Ishan, looking around in awe, where am I and who are you? God, in a calm, resonant voice. You are in a space of your own making, Ishan, and I am who you think I am. Call me God if that feels right to you. तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एक ड्रीम में वो एनकाउंटर करते हैं, ईशान गॉड के साथ में एनकाउंटर कर गए हैं, उसे ड्रीम से पूरी की पूरी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। तो ईशान खुद को फ्लोटिंग महसूस कर रही है कि फ्लोइंग प्रेजेंस उनको आकर एनवेलप कर लेती है। और ईशान जब देखते हैं तो वो पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ और आप कौन हो? तब गॉड एक काम और रेजोनेंट वॉइस में बोलते हैं कि तुम अपनी खुद की एक मेकिंग वाले स्पेस में हो ईशान, एंड आई एम हु यू थिंक आई एम। कॉल मी गॉड इफ दैट फील्स राइट टू यू। ईशान, eyes widening. You are God? Really? Why have you decided to appear before me? God, with a serene expression. Because you have been asking questions, Ishan. Big questions. I thought it was time we talked. Ishan, excited, but with a tinge of desperation. So you heard me. I mean, I think about so many things about life, about health, about why people hurt each other, why animals suffer, but mostly about my own illness. Why is it that despite all the advancements in medicine, I am still so sick? Why is there no cure for what I have since birth? तो जैसे अगर कभी हमारे सामने भी अचानक से गॉड आ जाए तो हमारे मन में भी होगा ना कि आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मेरे सामने आप आ जाओ। तो वैसे ही ईशान के मन में भी ये क्वेश्चन आया और गॉड ने बोला कि क्योंकि तुम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बिग क्वेश्चंस, तो मुझे ऐसे लगा कि अब हमें बात करनी चाहिए। तो ईशान अपनी डेस्परेशन के साथ कह रहा है, जैसे हमने प्रीफेस में पढ़ा कि ईशान बहुत कंपैशनेट एक चाइल्ड है, तो वैसे ही वो गॉड से कह रहा है कि फाइनली आपने अभी मुझे सुना। मतलब मैं बहुत सारी चीजों के बारे में सोचता हूँ, लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, क्यों लोग एक दूसरे को हर्ट करते हैं, क्यों एनिमल्स सफर करते हैं, पर सबसे ज्यादा मैं अपनी खुद की इलनेस के बारे में सोचता हूँ, जो बीमारी शानी को सिंस बर्थ। तो इतने सारे एडवांसमेंट्स हो गए मेडिसिन में, पर फिर भी मैं इतना ज्यादा बीमार क्यों हूँ? क्यों मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है? God, gently. I hear everything, Ishan. Every thought, every question. Tell me what troubles you the most. यहाँ पे गॉड आंसर कर रहे हैं कि मैं सब कुछ सुनता हूँ, हर एक थॉट, हर एक क्वेश्चन। तो इससे हम ये लर्निंग ले सकते हैं, कई बार हम भी बहुत डेस्परेट हो जाते हैं लाइफ में, हमें ऐसे लगता है हमारे प्रेयर्स आंसर नहीं कर रहे हैं गॉड। उस टाइम पे आप खुद को ये याद दिलाएं कि गॉड हर एक चीज सुन रहे हैं, आपके बोलने से भी पहले जब आपकी थॉट में वो चीज आ रही है तभी से गॉड वो सुन रहे हैं। इस बात पे हम विश्वास जितना करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। कमिंग बैक टू ईशान स्टोरी, गॉड पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ सबसे ज्यादा तुम्हें ट्रबल क्या चीज करती है? ईशान, वॉइस ट्रेम्बलिंग, इट्स दिस, आई हैव बीन इल माई होल लाइफ।
My body is weak and no one seems to be able to fix it. I have spent so much time wondering why are there still so many illnesses without a cure? Why do some people suffer so much? Why does healing feel so out of reach even when we have so much knowledge and technology? Ishan pauses, eyes filling. And it's not just that, God. Why do you let wars happen? Wars that kill innocent children who just want to play, learn, and laugh like I do. Why do some kids go to bed hungry, scared, and alone? Why do people fight over land, power, or beliefs while the innocent are crushed in between? Why are you letting all of this happen? यहाँ पे ईशान के काफी सारे क्वेश्चंस हैं उसके खुद की इलनेस से रिलेटेड और जो वर्ल्ड में चल रहा है इस कलयुग में जो जो चीजें चल रही हैं जो लोग सफर कर रहे हैं चिल्ड्रन सफर कर रहे हैं जो वॉर्स के वजह से इनोसेंट लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि ईशान काफी कंपैशनेट है इसीलिए वो ये सारी बातें सारे क्वेश्चंस गॉड से पूछ रहा है गॉड पॉजिंग ब्रीफली I can relate to your pain, my child. I see it. I feel it. And it is precisely because of your deep compassion, your brilliant mind, and your unshakable courage that I have chosen to appear to you now. तो अब गॉड कह रहे हैं कि ये जो जितना पेन है इन सब से गॉड रिलेट कर पा रहे हैं उसे देख रहे हैं उसे फील कर रहे हैं और ये जो भी पेन हो रहा है शान को वो इस वजह से क्योंकि वो काफी कंपैशनेट है उसका माइंड बहुत ब्रिलियंट है और उसके अंदर अनशेकेबल करेज है जिस वजह से वो ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर पा रहा है और गॉड ने इसी वजह से चूज किया है कि वो ईशान के सामने अपीयर हो सके God, speaking with compassion. Your concerns are not only valid, they echo through the soul of the earth itself. This suffering, this chaos, this endless cycle of war, famine, and disease, it does not arise from my absence. No, Ishan, I govern this universe according to eternal laws, laws that are unchanging, precise, and beyond mortal whims. तो गॉड कह रहे हैं कि ये जो भी सफरिंग हो रही है दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं ये गॉड की एब्सेंस की वजह से नहीं है मतलब अगर कभी भी हम कुछ सफरिंग या कुछ नेगेटिविटी देखेंगे इस वर्ल्ड में तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि गॉड प्रेजेंट ही नहीं है इस वजह से बुरा हो रहा है गॉड प्रेजेंट है पर ईशान का जैसे कंसर्न था कि आप ऐसे क्यों होने दे रहे हैं इस वर्ल्ड में इस दुनिया में तो गॉड कह रहे हैं कि मैं इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न करता हूँ इटर्नल लॉज के अकॉर्डिंग तो कई सारे इटर्नल लॉज हैं जो कि अनचेंजिंग है प्रिसाइज है और मॉर्टल विम्स मतलब हम लोग उन चीजों को नहीं समझ सकते हैं उन लॉज के अकॉर्डिंग गॉड इस पूरे वर्ल्ड को गवर्न करते हैं इस पूरे यूनिवर्स को God, with a touch of sadness. It is the ignorance and neglect of these divine laws that invite destruction, that open the door to conflict, to imbalance, to calamities, both natural and man-made. Humanity has wandered far from alignment with the truth. तो गॉड ने जैसे कहा कि इटर्नल लॉज है जिनके अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स गवर्न होता है तो अब गॉड कह रहे हैं कि जो इग्नोरेंस होता है जब हम इन डिवाइन लॉज को निग्लेक्ट कर देते हैं तब ही डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तब कॉन्फ्लिक्ट होता है इनबैलेंस क्रिएट होता है इस वर्ल्ड में कैलमिटीज होती है नेचुरल भी और मैनमेड भी नेचुरल कैलमिटीज जैसे कि हैजर्ड्स डिजास्टर्स और मैनमेड तो जो एंथ्रोपोजेनिक रहता है तो उसके उसके वजह से भी काफी सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं तो ह्यूमैनिटी जब ट्रुथ के साथ अलाइंड नहीं रहती ट्रुथ से बहुत दूर चली जाती है तभी ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है गॉड पॉजिंग ब्रीफली but there exist elegant sacred methods forgotten in this dark age of culture that can restore balance, health, and peace. Techniques once known by sages and seers, now buried under the noise of the modern world. पर यहाँ पे गॉड हमें होप दे रहे हैं कि
अभी भी कुछ एलिगेंट है, सेक्रेड मेथड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, पर वो भूले जा चुके हैं। दे आर फॉरगॉटन इन दिस डार्क एज ऑफ कलर्स। कलयुग आने के बाद में ये सारे जो मेथड्स हैं वो लोग भूलने लग गए हैं। और अगर हम उन मेथड्स को वापस से स्टार्ट करें यूज करना, तो इस वर्ल्ड में जो इम्बैलेंस है उससे हम लोग बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थ और पीस को हम रिस्टोर कर सकते हैं। ये जो टेक्निक्स है, एक समय सिर्फ सेजेस जो एकदम संत मुनि होते थे उन लोगों को पता थी, पर अब ये जो टेक्निक्स है इस मॉडर्न वर्ल्ड की नॉइज के अंडर बरीड है। तो इन टेक्निक्स को हमें जानना होगा। God, with a gentle, compassionate face, I wish to teach you these methods, Ishan. I wish to pass on the eternal wisdom that can lift this world from darkness and guide it into a new golden age, an age where harmony reigns, where every child is safe, and where no heart goes hungry for love, peace, or bread. तो गॉड अब ईशान को कह रहे हैं कि ये जो मेथड्स है वो ईशान को सिखाएंगे, ताकि जो इटर्नल विजडम है ये पास ऑन हो सके। उसके बाद क्या होगा, इस वर्ल्ड से डार्कनेस को हटा करके हमें गोल्डन न्यू एज क्रिएट कर सकते हैं। और इस गोल्डन एज में क्या होगा, सिर्फ हार्मनी रहेगी, हर एक चाइल्ड सेफ होगा और कोई भी ऐसा हर्ट नहीं रहेगा जो कि हंग्री होगा फॉर लव, पीस और ब्रेड। God, pausing briefly, you have been chosen not by chance but by purpose. Your compassion and brilliance are not just admirable, Ishan, they are essential to this divine mission. You are to become the voice of this eternal laws, the one who will help restore divine order to this planet. God, with a look of determination, myself, will you accept this sacred destiny? तो गॉड ईशान से कह रहे हैं कि तुम बाय चांस चूजन नहीं हो, बाय पर्पस चूजन हो, क्योंकि तुम काफी कंपैशनेट हो, ब्रिलियंट हो। तो ये सारी चीजें एसेंशियल है इस डिवाइन मिशन पे। तो अब हमारा मिशन क्या है, टू एंड द डार्क एज ऑफ कलयुग एंड ब्रिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ सत्य। इस डिवाइन मिशन के लिए कंपैशनेट, ब्रिलियंट ये होना जरूरी है, और जो कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो फिर गॉड पूछ रहा है ईशान से कि क्या तुम ये सीक्रेट डेस्टिनी को एक्सेप्ट करोगे? ईशान लीनिंग फॉरवर्ड, a storm of eagerness and doubt in his voice. So you are saying there's a higher way, a deeper truth that can not only heal me but also rescue this world from the chaos it's drowning in. With God, I'm just a boy, fragile, flawed. How can I possibly become a beacon in this darkness? How can you expect me to lead ह्यूमैनिटी आउट ऑफ दिस सफरिंग? तो जैसे हमें पता है कि बर्थ के टाइम से ये ईशान काफी इल रहा है, जिस वजह से उसकी बॉडी फ्रेजाइल है, वीक है। तो ईशान खुद को डाउट कर रहा है कि आपको क्या लगता है कि मैं ह्यूमैनिटी को इस सफरिंग से बाहर निकाल सकूंगा? गॉड स्पीकिंग थॉटफुली, I have chosen you for the strength you have shown in overcoming relentless adversity. Your intellect is formidable. I will show you how to restore your body, and once your health is regained, nothing will stand in your way. You will carry out this divine mission to restore order to this planet and to bring relief to the suffering of hapless individuals worldwide. तो यहाँ गॉड कह रहे हैं कि ईशान ने एडवर्सिटी के टाइम पर काफी स्ट्रेंथ दिखाई है, उसकी इंटेलेक्ट बहुत अच्छी है। तो गॉड उसे बताएंगे कि कैसे वो अपनी खुद की बॉडी को रेस्टोर कर सके, और जैसे ही वो अपनी हेल्थ को रिगेन करेगा तब उसके रास्ते में, मतलब हमारे मिशन में, कोई और ऑब्स्टिकल नहीं रहेगा, और वो इस वर्ल्ड में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसका फाउंडेशन वो रख पाएगा, यानी कि मिशन हो पाएगा हमारा। ईशान, eyes lightening up with a glimmer of hope. If such a divine solution exists, then I am ready, fully and without hesitation, to learn it, live it, and carry it to others under your guidance. I will give everything
Even lay down my life if needed to spread the sacred truth and awaken a suffering world. तो ईशान अब बहुत खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि इस तरह से डिवाइन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो मैं देती हूँ इवन अपनी लाइफ को भी दांव पे लगा करके मैं इस सीक्रेट ट्रुथ को स्प्रेड करूंगी. God, smiling gently, eyes filled with wisdom. This is exactly why I have chosen you, my son. Your heart is pure and your spirit unshakable. So let us begin this journey. The path ahead will challenge you, but what you are about to uncover will awaken a power far greater than you have ever known. Trust in the divine wisdom that already resides within you. It is more profound than you imagine. तो गॉड जो ये बात कह रहे हैं, इस लाइन को हम दोबारा पढ़ेंगे. द पाथ अहेड विल चैलेंज यू. जो सामने आगे जो हमारे रास्ता आएगा वो हमें चैलेंज करेगा. बट वॉट यू आर अबाउट टू अनकवर विल अवेकन अ पावर फार ग्रेटर देन यू हैव एवर नोन. पर आगे हमें जो पावर मिलेगी वो काफी ज्यादा बड़ी होगी. जितनी हमने जानी भी नहीं कि हमारे पास इतनी पावर है, वो उतनी होगी. ट्रस्ट इन द डिवाइन विजडम दैट ऑलरेडी रिसाइड्स विद इन यू. तो जो डिवाइन विजडम है वो हमारे खुद के अंदर है, उसे हमें ट्रस्ट करना होगा. इट इज मोर प्रोफाउंड दैन यू इमेजिन. ज्यादा प्रोफाउंड होती है, हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा प्रोफाउंड होती है. तो जो डिवाइन है, द किंगडम ऑफ डिवाइन इज विद इन यू. तो इस तरह से हमें अपने अंदर की जो अंतर आत्मा होती है उसे ट्रस्ट करना होता है. A spark of hope flickers on Ishan's heart and a sense of calm washes over him. He feels that the answer to his illness is close, and for the first time he dares to believe that healing is within his grasp. तो इस चैप्टर के बाद ईशान को बहुत होप मिल जाती है, एक सेंस ऑफ काम उसे फील होता है कि जो उसकी इलनेस की क्योर है, उसके जो आंसर्स है वो बस आने ही वाले हैं. और ये फर्स्ट टाइम है जब वो बिलीव करता है कि हीलिंग इज विद इन हिज ग्रास्प. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. डू यू हैव एनी टेकअवेज और लर्निंग्स टू शेयर फ्रॉम टुडेज सेशन? Thank you, Karuna sister, for taking such a wonderful session. Um, so it was a great session, and I'm looking forward to know the techniques so that even we could help in some way to bring a golden age on Earth. And I'm just seeing that George sir is with us in this meeting. If he wants to say something, then Thank you so much to the sister for sharing. Thank you, George sir, for joining. Thank you so much for joining, both of you. We'll meet again in the next session on Thursday at 4 p.m. Thank you.